ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪੀ ਡੀ 30 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਏ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ, ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, 30 ਤੇ 45। ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਆਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ x ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ y। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ? ਖਿਤਿਜ ਜਾਂ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ? ਖਿਤਿਜ। ਤੇ ਖਿਤਿਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਂਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਇਹ Z ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ਡਿਗਰੀ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਆਹ 45 ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 45 ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ AD x ਮੀਟਰ ਅਤੇ DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ y ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗੀ? x plus y। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਿਕੋਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਹ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਆ ਗਈ ADP, ਆਹ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਹ x ਹੈ, ਆਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ PDB, ਆਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਆਹ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਹ y ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਣ ਗਈ। ਤਿਕੋਣ ADP ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬ ਵਟਾ ਆਧਾਰ tan ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 45 ਦਾ। ਲੰਬ 3 ਆਧਾਰ x tan 45, ਇੱਕ x ਦੀ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, x ਏਕਮ x, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਲੰਬ ਹੈ, ਆਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਕੋਣ BDP ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਵਟੇ ਆਧਾਰ बराबर है किन्ने का कोण देता 30 का tan 30
लंब किन्ना 3, आधार किन्ना y, tan 30 हो गया 1/√3। तिरछी गुना तो y आ गया 3 गुना √3, गुना नहीं हो सकती क्योंकि एक अंडरूट वाला है, एक बिना अंडरूट तो है, आप इनू ओमे दा ओमे छड्ड दांगे। तो x आ गया 3 मीटर, y आ गया 3 मीटर। पता की करना है आपां नदी की चौड़ाई। हुण नदी की चौड़ाई हैगी ए बी, या आप कह सकते हैं x + y। x आ गया 3, y आ गया 3 3 साझा इत्थे 1 + √3 मीटर। फिर √3 बारे अगर लिखिया होया आप कीमत भर देंगे, अगर नहीं लिखिया होया तो आप इनू एज इट इज़ ही ड्रॉप कर देंगे। तो देखो ये सी अपना क्वेश्चन। हुण आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने कोले, फर्क कुछ नहीं, निवान कोण हल उचान कोण की तरह ही होंदा है, क्योंकि समांतर रेखावां करके इत्थे एकांतर कोण बन जाते हैं। हल उवें ही होगा, बस एक थोड़ा जिहा उचाइयां नूं दसदा है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दे दोहां पासियां ते दोवां पासियां ते आमनो सामने एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दे दोवां पासियां दे आमनो सामने बराबर लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखो की कहा पहली लाइन दे विच, एक सड़क देती, दो इको लंबाई दे खंबे देते, इन्हां दोनों खंबियां दे विच, इन्हां दोनों खंबियां विचकार सड़क ते एक बिंदु तो इन्हां दे सिखरां दा उचान कोण, इन्हां दे सिखरां दा उचान कोण क्रमवार 60 डिग्री अते 30 डिग्री है। हुण पता की करना है, खंबियां दी उचाई, एक तां कहंदे खंबियां दी उचाई पता करो, दूसरा बिंदु तो दूरी पता करो। आ क्वेश्चन है। पहली लाइन गल फिर उत्थे आ गए घूम के, पहली लाइन च देखो की है, कहंदे 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिहदे दोहां पासियां ते दो खंबे लगे ने। 80 मीटर दी सड़क होगी, एक इधर है एक इधर। खासियत की है, लंबाई बराबर है। मान लो ये भी एच है तो ये भी की हो गया एच। कहंदे सड़क ते एक बिंदु है, कित्थे आपां नूं नहीं पता, बिल्कुल विचकार नहीं लेना, आपां नूं नहीं पता, आपां लगभग मान लो इत्थे जे ले लिया, इनू ए लिख लिया, इनू बी सी डी, विचकार किते भी हो सकता, विचकार बिल्कुल मिड नहीं, अध नहीं, वो अलग अलग हो सकता है इधर 30 50 20 60, वो डिपेंड करता है, वो आप देखना है। कहते एक बिंदु तो इन्हां दे, हुण इत्थों है बिंदु तो इत्थों सिखर दे उचान कोण क्रमवार 60 डिग्री अते 30 डिग्री हैं। हुण देखो ध्यान नाल, आ 80 है, आ x है, तो फिर ये कितना हो गया, 80 चो x घटा देंगे, क्यों, अगर ये 20 होगा 20 मीटर होगा, इधर की लिखांगे आप 60, क्यों 80 चो 20 घटाता। इधर 30 मीटर होगा, इधर आप की लिखांगे 50, 80 चो 30 घटा देंगे, पर आपां नूं दूरी नहीं पता, आप की मान ली x, तो उधर की आ गया फिर 80 माइनस x। हुण आपां की मन्निया, एक तो आप लिख लिए मान लो खंबियां दी लंबाई, एच मीटर, ਜਿਹੜੇ अपने को ए डी ਅਤੇ बी सी हैं। दूसरा आप की बनया ए ई बराबर है एक्स,
जे ए एक्स है तो BE कितना हो गया 80 माइनस एक्स। हुण खंबा आ रहा तो आ 90 डिग्री का कोण बन गया, आ 90 का बन गया, एक त्रिकोण आ बन गई, एक वो बन गई। तो पहली त्रिकोण ये तो पहला ही अड अड है, अड करन की लोड़ नहीं हैगी। त्रिकोण ADE विच लंब वटे आधार, लंब वटे आधार हो गया tan, कितना कोण है 60, लंब हो गया H, आधार हो गया X, tan 60 हो गया √3, तिरछी गुना की H आ गया √3x। ये होगी पहली समीकरण। दूसरी BCE त्रिकोण होगी या BEC, नाम कुछ भी ले लो। आ लंब हो गया, ये वास्ते आ आधार हो गया, लंब वटा आधार tan, कोण कितना 30 डिग्री, लंब आ गया H, आधार हो गया 80 माइनस एक्स, tan 30 कितना हो गया 1/√3, तिरछी गुना √3 की H नाल गुना की √3H, आ गया ओमे दा ओमे। दोनों त्रिकोणा हल कीतियां, अपने को आ गया। हुण इहनूं कीमत H की कीमत आपां दे रखी है, कितनी है √3x, पहली समीकरण तो √3 की √3 नाल गुना की 3x बराबर है 80 माइनस एक्स, एक्स उधर चला गया, कादा हो गया प्लस दा, तो 3x प्लस एक्स 4x, ये हो गया 80/4 20 मीटर। एक्स आ गया 20 मीटर। आ रही समीकरण एक, देखो की दे रखे एच, की कढ़ना पहला देखो। हुण खंबियां की उचाई एक तो आप एच कढ़ना है। हुण एच की है √3x, √3x है ना, एक्स कितना 20, गुना होंगे नहीं तो उचाई कितनी आ गई 20 √3 मीटर। पहला काम निबड़ गया। दूसरा खंबियां की बिंदु तो दूरी एक्स कितना है 20 मीटर, आ कितना रह गया 60 मीटर। तो यदा मतलब AE हो गया 20 मीटर, पहले खंबे 20 मीटर दूर हो गया, तो दूसरा खंबा हो गया 80 चो 20 घटाए 60 मीटर। देखो कितना कि सिर्फ दोनों समीकरण हल की, ऑटोमेटिकली अपने को सारे की आ गए आंसर आ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप इस बाद। हो ना क्वेश्चन की कहता अगला, आपां नूं डायग्राम दी हुई है। कहते एक नहर के तट ते, एक नहर दे तट ते एक टीवी टावर सीधा खड़ा है। डायग्राम आपां नूं दी हुई है क्वेश्चन दे विच। टावर दे ठीक सामने, टावर दे ठीक सामने दूसरे तट ते एक होर बिंदु तो, दूसरे तट ते एक होर बिंदु तो टावर दे शिखर का उचान कोण 60 डिग्री है। टावर दे शिखर का उचान कोण 60 डिग्री है। इसे तट तो 20 मीटर दूर, इसे तट तो आप देखो किनारा दे रखे एक, कहते उस तो 20 मीटर दूर किसी होर बिंदु तो टावर दे शिखर का उचान कोण, बिंदु तो टावर दे शिखर का उचान कोण 30 डिग्री है। टावर की उचाई पता करो। आ क्वेश्चन है अपने को। डायग्राम दी हुई है आपां नूं। आ रहा टावर, आ रही नदी, एक बिंदु आ रहा, दूसरा आ रहा जिहड़ा 20 मीटर दूर है।
आ 60 डिग्री का कोण है, आ 30 डिग्री है। मान लो आ एच है, आ एक्स। हुण आपां नूं देखो आ डायग्राम नाल दित्ती हुई है। हल टावर आ रहा 90 डिग्री, तो तिकोना आपां किहड़े लैके चलनी 90 के हिसाब नाल। देखो किहड़ा हो गया 90, टावर ए बी सी। पहला ए हो गया, ए हो गया एच, ए हो गया एक्स, ए हो गया 60। टावर की उचाई आपां कितनी मान ली एच, नदी की चौड़ाई आपां कितनी मान ली एक्स। तो दूसरी त्रिकोण देखो 90 के हिसाब नाल ए बी। हुण आ सारी, क्योंकि उरे तो 90 हैगा, आ सारी आ गई डी तक। इत्थे सी लगभग आपां लैके चलीए, आ एच है, आ 30 है। अगर सी के हिसाब नाल देखिए उरे वी है, उरे एक्स है, परंतु जो टोटल करांगे की हो जाऊगा v प्लस एक्स। ठीक, हुण एक त्रिकोण आ बन गई, एक त्रिकोण आ बन गई। तो पहली त्रिकोण त्रिकोण ए बी सी विच लंब वटे आधार tan 60, लंब हो गया h, आधार हो गया x, tan 60 की कीमत, tan 60 की कीमत होंगी है √3, x की गुना की तो h आ गया √3x। पहली समीकरण आ गई। दूसरी त्रिकोण आ रही अपने को ए बी डी। त्रिकोण ए बी डी विच लंब वटे आधार, क्योंकि लंब दिता होया आधार दिता होया tan 30, लंब हैगा h, आधार हैगा v प्लस एक्स, tan 30 हो गया 1/√3, तिरछी गुना √3 की एच नाल गुना की √3h बराबर v प्लस एक्स। यह हल करके आ समीकरण बन गई। हुण इनू वरतो, h की कीमत कितनी है देखो ध्यान नाल √3x, समीकरण 1 तो √3 की √3 नाल गुना की 3x बराबर v प्लस एक्स। एक्स उधर जाके कादा हो गया घटा दा v, 3 चो 1 घटाए 2x बराबर है v, एक्स आ गया 10 मीटर, एक्स निकल गया। परंतु आप उचाई कढ़नी है, बस समीकरण 1 च भरो। एच एक्स की कीमत कितनी आ गई 10, √3 की 10 नाल गुना की 10 √3 मीटर। फिर वही गल, अगर √3 की कीमत दी है भर देंगे, नहीं आप इत्थे इहनूं की कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। ये सी अपना क्वेश्चन। हुण आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जो है अपने को कहते 7 मीटर उच्ची इमारत दे 7 मीटर उच्ची इमारत दे शिखर तो एक केबल टावर दे शिखर तो एक केबल टावर दे शिखर का उचान कोण 60 डिग्री है। अते उसके पैर का निवान कोण अते उसके पैर का निवान कोण 45 डिग्री है। टावर की उचाई पता करो। क्वेश्चन ये देता, फर्क की पिया, इत्थे 2 उचाइयां दित्तियां हुई हैं। ज़्यादातर आप क्वेश्चन की कीते, एक बिंदु हुंदा एक उचाई हुंदी है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट तोड़ो। 7 मीटर उच्ची इमारत, जमीन आ इमारत आ गई जिहदी उचाई आपां नूं देती 7 मीटर। दे शिखर आ रहा उहदा शिखर तो एक केबल टावर। हुण केबल टावर छोटा या वड्डा देखते हैं। दे शिखर दा उचान कोण देता, कहते इत्थों उचान कोण है, इत्थों उचान कोण मतलब ऊपर जा रहा है तो टावर तो वड्डा है। देखो ये दस रहा है इत्थों उचान कोण खिंचिया दे शिखर दा, तो क्लीयर हो गया टावर तो वड्डा है। आ प्रेखण बिंदु दृष्टि रेखा, आ होगी क्षितिज रेखा, होगी ना।
ਤਾਂ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੇਖਾ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਖਣ ਬਿੰਦੂ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਖਿਤਿਜ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ 7 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ABCDE। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਚਾਨ ਕੋਣ। ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ 7 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 7। ਮੰਨ ਲਓ ਆ x ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ BC ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ BC ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਤੇ BC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ AD ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ DE ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ h ਮੀਟਰ। ਹੁਣ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਟਾਵਰ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਿਚਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ADE ਵਿੱਚ XH 60 ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ 45, ਆ 7, ਆ x, ਆ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੰਬ ਵਟੇ ਆਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਹੈ 60, ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ h, ਆਧਾਰ x, ਟੈਨ 60 ਦੀ ਕੀਮਤ √3, ਇਹਦੀ ਉਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ √3x। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਕੋਣ ADC ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ, ਟੈਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 45, ਲੰਬ ਆ ਗਿਆ 7, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ x, ਟੈਨ 45 1, x ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ x, ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ h ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ √3x ਤੇ x ਹੋ ਗਿਆ 7, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 √3 ਮੀਟਰ। ਦੋਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਪਲੱਸ ਆਹ ਕਿੰਨਾ h, ਆ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ 7, ਤਾਂ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ h + 7, h ਕਿੰਨਾ 7 √3 + 7, 7 ਸਾਂਝਾ √3 + 1 ਮੀਟਰ। √3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਦੇ ਲਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 75 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 75 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਉੱਚੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ, 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਹਨ। 30 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 75 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ? ਹੁਣ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਪ੍रेक्षण ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੇਖਾ, ਆ ਖੇਤਰੀ ਰੇਖਾ 30 डिग्री। दूसरे ਦਾ ਆ प्रेक्षण बिंदु, आ क्षितिज रेखा, आ दृष्टि रेखा, आ सारा हो गया 45 डिग्री है। तो जहाज़ां विचकार दूरी पता करनी है। पहला जहाज आ रहा, दूजा जहाज आ रहा, तो आप आ चीज़ लभनी है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है। निवान कोण दिते हुए ने, हुण आपां नूं पता है आ रेखा इहदे समांतर है, जो समुंदर तल है या धरती का लैवल है। तो जे आह 30 है, आ भी की हो गया 30 डिग्री एकांतर कोण। आ 45 है, ये भी की हो गया 45 डिग्री एकांतर कोण। तो देखो अपने को लाइट हाउस दे रखे है, आ रही समकोण। तो समकोण के हिसाब नाल दो त्रिकोणां नूं आपां की कर लांगे, सपोज कर लांगे। तो पहला की बन गया, इहदे हिसाब नाल देखो DCB, पहली जो समकोणी त्रिकोण बन गई DCB। आ 75, आ Y, आ 45 डिग्री। दूसरी DCA, सारी त्रिकोण बन गई आ 30 डिग्री। हुण आ देखो टोटल एक्स ते वाई का जोड़, ये हो गया 75। तो दो त्रिकोणां अपने कोले हो गई। पहली त्रिकोण BCD विच लंब वटे आधार किन्ना कोण है 45 का। लंब आ गया 75, आधार आ गया वाई टैन 45 1। वाई इंदू एक ना गुना करांगे, तिरछी गुना वाई नाल वाई आ गया एक ना, तो ये हो गया 75 मीटर। तो वाई की कीमत आ गई 75 मीटर। हुण त्रिकोण दूसरी ACD विच लंब वटे आधार टैन किन्ना 30 डिग्री। 30 डिग्री लंब किन्ना 75, आधार किन्ना एक्स प्लस वाई। टैन 30 की कीमत कितनी होंगी है 1/√3। तिरछी गुना की तो एक्स प्लस वाई की आ गया 75/√3। हुण समीकरण 1 दे विच वाई की कीमत आपां नूं पता है, हल कर चुके हैं, कितनी है 75। तो हल करन तो बाद उहदे कीमत भरो। 75 इधर प्लस दा, इधर आके कादा हो गया माइनस का। 75 साझा निकल गया, पिछे बच गया √3 - 1 मीटर। आपां की पता करना है जहाज़ां विचकार दूरी। आ से जहाज, तो असल की पता करना है एक्स। तो कितनी आ गई दूरी 75 ब्रैकेट दे विच √3 - 1 मीटर। तो यह सी दोस्तों अपना ट्रिग्नोमैट्री की एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज उचाई अते दूरी। थैंक यू।